Alright class, it's June 2010, paper 11. Ahmed goes shopping. In one shop he buys shorts for $26.84 and a shirt for $13.97. How much does Ahmed spend altogether? So it's very simple. You need to add these two, 26.84 plus 13.97. Simply add them and you will get the final value, 26.84 plus 13.97. It is equals to 40.81. That is your first part answer, very simple. In another shop he buys 15 postcards for 46 cents each. Calculate the total cost in dollars. तो इट्स वेरी सिंपल. आपने क्या किया, पहले 15 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 46 के साथ. व्हाट यू विल गेट, तो ये आ गया 690 सेंट्स. आपने कन्वर्ट करना डॉलर्स में, डिवाइडेड बाय 100 एंड यू विल गेट $6.9. सिंपल. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. The rate of exchange between pounds and dollars is 1 pound is equals to $2.50, and the question says calculate the total cost of the postcards in pounds. तो हमारे पास कितने आए थे, $6.9. तो अगर $6.9 होंगे तो यहाँ पर हमारे पास x आ जाएगा. By doing the cross multiplication you will get 2.50 equal to 6.9. तो आप सिंपल इसको डिवाइड कर लें, 6.9 डिवाइडेड बाई 2.5, तो x इज इक्वल्स टू 2.76. ये आपका आंसर आ जाएगा पाउंड्स में. दैट इज योर फाइनल आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी. It's June 10, paper 2-1. Wasim owns the shop. The table shows the cost price and selling price of 3 items in his shop. तो ये आपके पास उसका डेटा आ चुका है. कैलकुलेट हिज परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन ही सेल्स आर ट्रैम्पोलिन. So for first part you need to find out the percentage profit. इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस. आपको डिफरेंस चाहिए. So you need to subtract these two, 66 minus 48 divided by cost price 48 and multiply by 100. सिंप्लीफाई करते हैं इसको कैलकुलेटर पे. 66 minus 48 divided by 48 and multiply by 100. So you will get 37.5. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. Alright, पहला पार्ट डन. After that part B. Wasim makes a profit of 30% when he sells a swing. Calculate the cost price of a swing. जब उसने सेल किया तो कितना प्रॉफिट बनाया, 30%. जब 30% प्रॉफिट हुआ तो दैट विल बी 130. ओरिजिनल वो 100 पर होगा. प्रॉफिट बनाने के बाद जो उसकी प्राइस है वो कितनी है, इट्स 19.50. 19.50 divided by x. So you need to do the cross multiplication. 19.50 times 100 is equals to 130 times x. तो x का आंसर निकाल लेंगे सिंपली यहाँ से. 19.50 multiply by 100 divided by 130. So the price for x is equals to $15. ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर हो गया. ऑलराइट. आफ्टर दैट पार्ट सी. मैं डिफरेंट कलर्स कर रहा हूँ ताकि आपका ABC आपको क्लियर करने में आसानी हो जाए. In a sale, the selling price of a bicycle is reduced by 20%. Find the selling price of the bicycle. बाईसाइकिल की प्राइस रिड्यूस हो गई 20%. ठीक है जी. ओरिजिनल वो थी 100 पर, अब रिड्यूस हो गई 20%, तो कितना बचा, 80. प्राइस थी क्या बाईसाइकिल की आपके पास, द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय, ठीक है. तो अभी सेलिंग प्राइस क्या थी उसकी, 110 थी. आपको फाइंड करना है न्यू सेलिंग प्राइस. So we'll do the cross multiplication. 80 multiplied by 110 and divided by 100. So that is equals to 88. So y is equals to $88. That is the new price after discount. All right, आगे बढ़ते हैं बेटा. Moving towards the second part. It says Thursday special, save 10% of the sale price. Jaspreet bought a bicycle on Thursday. Calculate the difference between the amount Jaspreet paid and the cost price. अब उसने थर्सडे को जब लिया तो वहाँ क्या कह रहा है, सेव 10% ऑफ द सेल प्राइस. क्या परचेज किया उसने, बाईसाइकिल को. ठीक है. अच्छा, 20% का डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ है. 20% का डिस्काउंट आपका ऑलरेडी लगा हुआ है और अब 10% का मजीद डिस्काउंट लग रहा है. इस पार्ट के लिए मेरी वर्किंग कुछ ऐसे होगी, न्यू अपॉन ओल्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक है ना.
अब वो मज़ीद 20% के बाद डिस्काउंट कितना आ रहा है 10%, तो यहाँ पर आ जाएगा 90, ओरिजिनल था वो 100, लेकिन जो ओरिजिनल था वो था 88 बेटा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डिस्काउंट चल रहा था, उस पर मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है और आपको फाइंड करनी है उसकी न्यू प्राइस. So you need to do the cross multiplication. So 88 multiplied by 90 and divided by 100. So that is 79.2. So the new price is 79.2. The question says find the difference between the cost between the amount just prepaid and the cost price. So the cost price of the bicycle was 82. तो अब आपने निकालना है इसका डिफरेंस. So that will be 82 minus 79.2. So 82 माइनस 79.2, $2.8, ये आपका फाइनल आंसर है. राइट. इट्स June 10, paper 2-2. Sarah bought some soup, apples and mushrooms from her local shop. The table shows some of the amounts and prices. P cans of soup at 90 cents per can, ये आ रहा 6.30. 1.5 kg of apples at $Q per kg, ये आ रहा है 4.35. 8 kg of mushrooms at 6.40 per kg, ये आ रहा है 1.60 का. ठीक है. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर पी क्यू एंड आर. सबसे पहले आप फोकस करना कि आपके पास जो प्राइस है ना ये डॉलर्स में दी है. ठीक है. अब हम बात करते हैं पी के लिए. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पी. पी आपसे कह रहा है पी कैन्स ऑफ सूप एट 90 सेंट्स पर कैन. तो भाई अगर एक कैन जो है वो 90 सेंट्स का है तो आप 6.30 के कितने कैन ले लोगे. तो पहले तो हम 6.30 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ रहेगा मेरे पास 630 सेंट्स. ठीक है ना. एक कैन जो है वो 90 सेंट्स का है. आपको मालूम करना है कितने कैन आप ले सकते हो. तो सिंपल है, 630 को आपने डिवाइड किया 9 से, और इसका मतलब ये हुआ कि आप 7 कैन ले सकते हो. तो आपके पास पी का आंसर आ जाएगा सिंपल 7. अब आए आप नेक्स्ट पर क्यू पर. क्यू के बारे में क्या कहा आपको. 1.5 kg ऑफ एप्पल्स एट $Q पर kg. अगर $Q है तो ये 1 kg है, मतलब 1 kg की प्राइस हमारे पास है $Q. ठीक है. ये दिया हुआ है आपको. आपने कितना लिया, आपने 1.5 kg लिया, और कितनी प्राइस में लिया आपने 4.35 में लिया. तो आप सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे. 1.5 टाइम्स Q इज इक्वल्स टू 4.35, और Q क्या आ जाएगा आपके पास. इट इज़ 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5. तो मैं इसको ज़रा डिवाइड कर लूँ, एक मिनट रुकिएगा. ये आ जाएगा 4.35 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट लीड्स टू 2.9. तो Q का आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.9. अब आ जाए नेक्स्ट वन आपके पास आर की वर्किंग यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं. आर कह रहा है 1 kg ऑफ मशरूम्स एट 6.40 पर kg. मतलब अगर 6.40 का 1 kg आ रहा है, ठीक है ना, 6.40 का 1 kg आएगा, तो आपने कितना लिया होगा. अगर आपने $1.60 का लिया है तो आपके पास कितना kg आएगा वो आ रहेगा. तो अब यहाँ पर भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो दैट विल बी 1.60 इज इक्वल्स टू 6.40 आर. तो डिवाइड किया 1.6 डिवाइडेड बाय 6.40, इट इज़ इक्वल्स टू 0.25. सो आर इज इक्वल्स टू 0.25. ये आपके पास तीनों के आंसर्स आ गए पहले पार्ट के. ऑलराइट. नेक्स्ट वन. सारा गिव्स द शॉपकीपर $20 टू पे फॉर ऑल 3 आइटम्स. हाउ मच चेंज डज शी रिसीव. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अब आप इन तीनों को टोटल कर लो. 6.3 प्लस 4.35 प्लस 1.60, ये आपने कर लिया. इट इज़ इक्वल्स टू 12.25. उस 12.25 को आप सब्ट्रैक्ट करो किसमें से, 20 में से. 20 में से जब आपने माइनस किया इसको, सो व्हाट यू विल गेट 7.75. तो सारा करो चेंज रिसीव हुई होगी, दैट इज़ 7.75. ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर है. पार्ट बी. वॉशिंग मशीन एक है जो कि $980 की है. उसका एक फाइनेंस ऑफर आपको मिला हुआ है कि 20% आप डिपॉजिट पे करो और 24 मंथली पेमेंट्स ऑफ $36 ईच. Levin decides to buy this washing machine. How much more would it cost if he paid for the washing machine using the finance offer instead of paying the 980 immediately. अच्छा जी, उसने वॉशिंग मशीन को हायर परचेज पे ले गया और फाइनेंस ऑफर पे ले गया. ठीक है ना. तो उसने पहले 20% दिया होगा. 20% मतलब 20/100 किसका, उसकी प्राइस का, जो कि है 980. जब 20% दिया, देखिए कितना आया, 20 मल्टीप्लाई बाय 980 एंड डिवाइडेड बाय 100.
दैट इज इक्वल्स टू 196। $196 उसने दे दिया डिपॉजिट पर। अब कितना देगा वो? अब वो दे रहा होगा 24 मंथली पेमेंट्स ऑफ 36 ईच, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 24। ये भी दे रहा होगा वो 36 मल्टीप्लाई बाय 24, ये आ जाएगा 864। अब मैं आपसे पूछूं कि यार 11 ने टोटल कितना पे किया, तो आप सिंपल इन दोनों को ऐड अप कर लोगे। जब आपने इन दोनों को ऐड किया सो 864 प्लस 196, ये कितना आ जाएगा 1060। ये 1060 उस वॉशिंग मशीन का दे रहा है जिसको अगर वो फ़ौरन जाके लेता तो 980 की मिलती। तो आपसे वो पूछ रहा है कितना एक्स्ट्रा पे किया उसने भाई, तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे 1060 उसकी प्राइस आई, उसमें से 980 को माइनस कर देंगे। सो दैट इज़ इक्वल्स टू $80। मतलब वो $80 सेव कर सकता था अगर वो डायरेक्ट परचेज करता। ये आपका पार्ट बी का आंसर हो गया। ऑलराइट, आफ्टर दैट पार्ट सी, आसिफ डिपॉजिट 650 इनटू आ बैंक पेइंग सिंपल इंटरेस्ट। तो आपके पास डिपॉजिट मतलब 650 आपका प्रिंसिपल आ गया। ऑलराइट, ही लीव्स द मनी देयर फॉर 5 years, तो टाइम आ जाएगा आपके पास 5 years का। एट द एंड ऑफ 5 years द अमाउंट इन द बैंक इज 763.75, तो अमाउंट आ जाएगा $763.75। कैलकुलेट द परसेंटेज रेट, आपको फाइंड आउट करना है रेट क्या होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमाउंट का एक फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अमाउंट को प्लेस किया, अमाउंट इज 763.75 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इज 650 एंड इंटरेस्ट हमें नहीं पता, ठीक है। अभी 650 यहाँ के माइनस कर दिया आपने, सो 763.75 माइनस 650, ये आ जाएगा 113.75। 113.75 क्या आया आपके पास, आपका इंटरेस्ट आया। अच्छा, इंटरेस्ट का तो हमें एक फॉर्मूला पता होता है, इंटरेस्ट बराबर होता है PRT डिवाइडेड बाय 100 के, और जो आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट आई थी उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ रहा, वो अपनी जगह वैसे ही है 113.75। अब यहाँ पे राइट साइड पे हम वैल्यू प्लेस करना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास 650, रेट हमें नहीं पता, टाइम उसने हमें दिया हुआ है 5 years का, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 113.75। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, 113.75 ये 100 आके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 650 आके डिवाइड होगा और आपके पास 5 भी आके डिवाइड होगा। तो आपके पास जो रेट आएगा इसका दैट इज इक्वल्स टू 3.5%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, November 2010 पेपर 1-2। इन अ सेल अ शॉपकीपर रिड्यूस द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स बाय 20%, उसने 20% का डिस्काउंट लगा दिया। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक वॉज 20। अगर ये 20 है, सही है ना, इसकी प्राइस क्या होगी। अब आपको ये बता चुका है कि हर एक प्राइस रिड्यूस हो रही है 20 की। 20 की अगर रिड्यूस हो रही है इसका मतलब है अब कितनी बची 80, 100 में से आपने 20 माइनस कर दिया, सही है। और उसकी प्राइस है कितनी हमारे पास, उसकी प्राइस है 20। तो जब 20 होगी तो प्राइस है उसकी 100% पर। 20% रिड्यूस होने के बाद प्राइस क्या होगी, तो आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया 80 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस आ रहेगी 16। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। द प्राइस ऑफ अ कैमरा इन द सेल वॉज $60, कैलकुलेट इट्स मार्क प्राइस। अब ये $60 जो है ये 20% डिस्काउंट के है, मतलब ये 80 की प्राइस है। उसने कहा भाई मार्क प्राइस, उस पर क्या प्राइस टैग लगा था ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 दैट इज इक्वल्स टू 75। इसका मतलब है 75 की टैग लगा होगा और 20% डिस्काउंट के बाद वो 60 की मिल रही होगी, ये मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट वन, इट्स November 10 पेपर 2-1। ऑल राइट, Archie bought a car from a dealer. The dealer sold the car for $7,040. Archie paid a deposit of $1,760. Calculate the deposit as a percentage of the selling price. पहला पार्ट बहुत सिंपल है, आपको डिपॉजिट एज आ परसेंटेज, डिपॉजिट कितना था भाई 1760, एज आ परसेंटेज के बाद जो लिखा होता है वो आपका डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर में कौन आएगा, सेलिंग प्राइस। कितने की सेलिंग प्राइस है भाई उसकी 7040, और परसेंटेज में लाने के लिए यूनिट टू मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई कर लें 1760 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 7040 दैट इज इक्वल्स टू 25%। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन,
पार्ट बी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। RC took out loan agreement to repay the outstanding balance of 5280. He paid 212.67 per month for 36 months. Calculate the amount of interest he paid. All right. उसने कितना पे किया होगा पहले हम ये देखते हैं भाई। 212.67 वो देता गया कब तक? 36 मंथ तक वो देता गया। So 212.67 मल्टीप्लाई बाय 36 इट इज इक्वल्स टू 7656.12। ये तो उसने दिया होगा उस ड्यूरेशन में, ठीक है ना, 36 मंथ तक। आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5280 पे किया किस अमाउंट का भाई? उसकी अमाउंट क्या थी? उसकी अमाउंट थी 5280। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा 5280 तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास वो आएगा जो उसने अमाउंट एक्स्ट्रा पे की होगी। उसने एक्स्ट्रा पे किया $2376.12 और ये वो अमाउंट होगी जिसको उसने इंटरेस्ट का नाम दिया है। तो ये आपके पास आंसर आएगा पहले पार्ट का, बी के फर्स्ट पार्ट का। ये उसका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं बी के सेकेंड पार्ट पर। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर दैट हैड बीन चार्ज्ड। ऑलराइट, तो आपके पास प्रिंसिपल रेट मंथ्स, ठीक है, सभी कुछ आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी डिवाइडेड बाय 100। अब मुझे चाहिए यहाँ पर रेट चाहिए, ठीक है ना, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आर मेरे पास यहाँ पर अननोन हो गया। इंटरेस्ट कितना आ गया? इंटरेस्ट तो हम निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, वो हमारे पास आया 2376.12 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल क्या था मेरे पास? प्रिंसिपल के पास है 5280 एज गिवन इन द क्वेश्चन। रेट हम फाइंड करना चाह रहे हैं और टाइम हमारे पास है। तो टाइम पे ख्याल रखिएगा बेटा, टाइम यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 36 मंथ। 36 मंथ का मतलब होता है, ये बात कर रहा है 3 ईयर्स की, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं हमारे पास, ठीक। तो ये टाइम हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 एंड डिवाइडेड बाय 100। अब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2376.12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5280 एंड डिवाइडेड बाय 3। सो रेट इज 15%। ये आपका इसका आंसर आ गया। ऑलराइट, दैट इज बी पार्ट 2। आफ्टर दैट पार्ट सी। अब हमें पता है कि अगर 30% का प्रॉफिट होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 130, 100 में ऐड होता है। तो अब हम अप्लाई करते हैं न्यू अपॉन ओल्ड, तो ये हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, डीलर ने जब प्रॉफिट बनाया 30% बनाया, ठीक है। कैलकुलेट द प्रॉफिट करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर दैट द डीलर मेड ऑन द सेल ऑफ दिस कार, ठीक है। जब उसने गाड़ी को सेल किया था तो कितने का सेल किया था? 7040 का। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस आई 7040 और हमें ये मालूम करना है कि यार उसकी प्राइस पहले 100% पे क्या थी। अब आपने किया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7040 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 130। तो ये आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा 5415.38 ठीक है ना। ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो समझो इसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई। आपको निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितने की निकाली उसने? 7040 की। कॉस्ट प्राइस की आई 5415.38। इनको आपस में सॉल्व करने, प्लस 7040, तो इट इज इक्वल्स टू $1624.6। उसने आपसे कहा है करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे पास इसका? प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1625 एंड डॉलर्स। ये आपका इसका आंसर है। It's November 2010, paper 2-2. The rate of exchange between pounds and dollars is given. The rate of exchange between pounds and euros is given. पहला सवाल, कैथरीन चेंजेस 500 पाउंड्स इनटू डॉलर्स। तो पहले तो आपके पास डॉलर और पाउंड का कौन सा भाई? पहला वाला है, ठीक है ना। तो अगर 1 पाउंड होगा तो आपके पास 1.87 डॉलर्स होंगे। अगर मेरे पास 500 पाउंड होंगे तो कितने हो जाएंगे? सिंपल, आपने मल्टीप्लाई किया 500 मल्टीप्लाई बाय 1.87 विच इज़ इक्वल्स टू, मैं ज़रा कैलकुलेट कर लूँ उसको, 500 मल्टीप्लाई बाय 1.87 इट इज़ इक्वल्स टू 935 पाउंड्स। तो ये तो सिंपल पहले का आपका आंसर आ गया 935 पाउंड्स। नेक्स्ट वन, पार्ट 2। ईस्टर चेंजेस 726 यूरोस टू पाउंड। अब यूरो टू पाउंड का आपके पास आ रहा है सेकंड वाला, ठीक है ना, कि अगर आपके पास 1 पाउंड होगा तो वो बराबर है 1.21 यूरोस के। उसके पास कितने हैं? 726। अगर 726 यूरोस हैं तो कितने पाउंड्स होंगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 726 इज इक्वल्स टू 1.21y। इसको आप सॉल्व मजीद करोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 726 डिवाइडेड बाय 1.21। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 726 डिवाइडेड बाय 1.21 इट इज़ इक्वल्स टू 600। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया 600 पाउंड्स। ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आ गया, ठीक है। अब आए नेक्स्ट पार्ट पर। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कर रहा है यूरोज़ और डॉलर्स। अब आप देखो, आपके पास यूरो का पाउंड के साथ है और पाउंड के साथ डॉलर के साथ है। फोकस करें ज़रा, ये भी $1 है और ये भी $1 है। अब देखिए मैं लिखूँगा कैसे इसको। मैं आपसे कहूँगा कि यार $1 एक पाउंड बराबर है 1.87 डॉलर्स के, ठीक है। और सेकंड में मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक पाउंड बराबर है 1.21 यूरोज़ के, ऐसा ही है। अब अगर आप ऑब्ज़र्व करो तो दोनों साइड पर आपके पास 1 पाउंड तो बराबर है। तो बेसिकली हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि 1.87 डॉलर्स बराबर है 1.21 यूरोज़ के। ये था यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट। जब अब दोनों चीज़ें 1 पाउंड के बराबर हैं तो वो दोनों करेंसीज आपस में इक्वल हो जाएंगी। आपको निकालना है 850 यूरोज़ का। तो अगर 1.87 डॉलर इसके बराबर है तो 850 डॉलर्स कितने के बराबर होंगे, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सिंपल इस पर एक्स कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, दैट इज इक्वल्स टू 850 मल्टीप्लाई बाय 1.21 इज इक्वल्स टू 1.87 ऑफ एक्स। ऑलराइट, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 850 मल्टीप्लाई बाय 1.21 डिवाइडेड बाय 1.87, दैट इज इक्वल्स टू 550। ये आपके पास आ गया 550 यूरोज़। ये आपका पार्ट 3 का आंसर है। ऑलराइट, मैं लिख दूँ यहाँ पर, ये पार्ट 3 का आपका आंसर हो गया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट बी। मैथ्यू चेंजेस $770 into rupees, he received 40,000 rupees। जब उसने $770 को कन्वर्ट किया तो उसको कितना मिला, 40,000 रुपीज़ मिले, ऐसे ही है ना। हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही रिसीव फॉर ईच डॉलर। अगर $1 होता तो कितने रुपीज़ होते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। तो ये मेरे पास आएगा 770x इज इक्वल्स टू 40,000 और जाके आप डिवाइड कर दो। तो x इज इक्वल्स टू 40,000 डिवाइडेड बाय 770। So 40,000 divided by 770, it is equals to 51.95। 51.95 ये क्या आया, हाउ मैनी, ये $1 में इतने रुपीज़ आएंगे इसके, सही ना। हाउ मैनी रुपीज़ डिड रिसीव फॉर ईच डॉलर, तो ये $1 का कन्वर्जन रेट आ गया। ऑलराइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ये मैंने कौन सा पार्ट किया था, ये मैंने बी का पार्ट 1 किया था, ठीक है। अब हम सी पार्ट में स्टार्ट यहाँ से करता हूँ ताकि क्लैरिफाई होता है सबको। सी का पार्ट 1। लिली बॉट अ कार फॉर 13,500, शी पेड इट फॉर इन 36 इक्वल पेमेंट्स, कैलकुलेट द अमाउंट शी पेड ईच मंथ। तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि हमारे पास वर्ड है इक्वल पेमेंट। 13,500 को हम सिंपल डिवाइड कर लेंगे 36 के साथ। तो 13,500 डिवाइडेड बाई 36 इट इज़ इक्वल्स टू $375, पहले का आंसर। ये हो गया सी का पार्ट 1। अब आए सी के पार्ट 2 पर। जॉर्ज बॉट अ कार फॉर 27,000, ही बोरोड द 27,000 at 15% per year simple interest for 3 years। he paid the total amount in 36 equal amount payment, calculate the amount for each month। all right, अब इसने क्या किया, इसने एक गाड़ी ली लेकिन वो उसने पैसे उधार किए। तो द प्रिंसिपल इज $27,000। पहली बात, रेट कितना आ गया मेरे पास, 15% का आ गया, इज़ गिवन। और आपको उसने कहा कितने साल तक किया, उसने 3 साल तक, टाइम आ गया उसका 3 ईयर्स। अब पहली बात है, आप यहाँ निकाल लोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है मेरे पास, PRT डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू प्लेस करो। 27,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। सो 15 टाइम्स 3 टाइम्स 270, दैट इज इक्वल्स टू 12150। ठीक है ना, ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल हो गया। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। आपसे क्या पूछा गया, कैलकुलेट द अमाउंट। पहले अमाउंट निकालें।
अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या था? 27,000। इंटरेस्ट कितना निकाला? 12150। दोनों को ऐड कर दें। 12150 प्लस 27,000 इट इज़ इक्वल्स टू $39,150। कितने टाइम में पे कर रहा था? ये पे कर रहा था 36 इक्वल पेमेंट। सो नाउ यू नीड टू डिवाइडेड बाय 36। तो आपको मिल जाएगा कि यार एक मंथ में कितना पे कर रहा था। सो एक मंथ में पे कर रहा है $1087.5। और December 11 paper 22, a shopkeeper buys some plates from a manufacturer for $10 each. The shopkeeper sells a plate for $12. Calculate the percentage profit. तो profit क्या होगा उसके पास? That will be 12 minus 10 divided by cost price is 10 and multiply by 100. That is your percentage profit. Simplify करेंगे, you will get the value of $20. All right, 20%. Sorry. Next part. The shopkeeper buys 240 plates and sells 180 at $12 each. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 180 को मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से एंड दैट इज इक्वल्स टू $2160। द रेस्ट वर सोल्ड टू अ कैफे फॉर अ टोटल ऑफ 540। पहली बात यह है कि आपके पास बची कितनी। उसके पास टोटल 240 थी, 180 उसने सेल कर दिया, तो ये आएगा सिंपली 240 माइनस 180 एंड दैट विल बी 60। 60 प्लेट्स जो उसने सेल की हैं, तो कितनी प्राइस पे सेल की है उसने? 540 पर सेल की है। तो अगर 6540 पर सेल की है तो एक प्लेट कितने की सेल की होगी? सो दैट विल बी 540 डिवाइडेड बाय 60 एंड दैट इज 9। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज डिस्काउंट। तो 9 की उसने सेल करी, जबकि ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज 25%। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट। मैन्युफैक्चरर मेड अ प्रॉफिट ऑफ 60 व्हेन ही सोल्ड ईच प्लेट एट $10। जब वो 10 की बेच रहा है तो 60% का प्रॉफिट है। ओरिजिनल उसकी प्राइस क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है एंड दैट इज इक्वल्स टू 6.25। ये उसकी ओरिजिनल प्राइस थी। Part B. Another shopkeeper bought 100 pens at $5 each. He sold 63 at $6 each and X at $4 each. तो पहले मैं निकालता हूँ उसकी सेलिंग प्राइस। तो ये आएगा मेरे पास 63 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड दैट इज इक्वल्स टू $378। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। एंड X एट $4 ईच, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय X दैट इज इक्वल्स टू 4X. He did not sell all the pens, not enough to make an overall profit. Form an equality in X. अच्छा, अब ये नोट करें कि उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी। देखें उसने कितने खरीदे? 100 पेन्स लिए एट 500। तो जो कॉस्ट प्राइस उसकी है वो है हमारे पास 500। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, नॉट इनफ टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट। प्रॉफिट कब बनाएगा? जब उसकी सेलिंग प्राइस 500 से ऊपर निकलेगी, बट वो प्रॉफिट नहीं बना रहा है। ऑलराइट, तो अब जो आपकी इनइक्वालिटी होगी, उसने कितना सेल किया? 378 उसके पास था प्लस 4x उसके पास था। क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, दैट मींस इट शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 500। In next part it says hence find the greatest possible number of pens that were sold. तो आपने अपनी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। 378 प्लस 4x शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 500। सिंप्लीफाई किया, 500 माइनस 378 and divided by 4, so that is x should be greater than equals to 30.5। अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास सिंबल है लेसर देन इक्वल्स टू का, 30.5 से जो छोटा नंबर है इंटीजर है, दैट इज x इक्वल्स टू 30। बट ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज इट सेज फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पेन्स। टोटल नंबर ऑफ पेन्स की बात कर रहा है। तो हमने ऑलरेडी कितने सेल कर दिए थे? हमने यहाँ पर 63 सेल कर दिए थे। ऑलराइट, सो 63 हमने पहले कर दिए और अब हमने कितने दिए? अब हमने 30 कर दिए। दैट मीन्स टोटल 93 जो है वो सेल हुए। नेक्स्ट पार्ट, वन डे द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अमेरिकन डॉलर्स एंड ब्रिटिश पाउंड is was 1.45 to 1 pound. All right, Allen changed 300 pounds into dollars. तो अगर आपके पास एक पाउंड बराबर है 1.45 डॉलर्स का, तो 300 पाउंड्स किसके बराबर होंगे? सो दैट इज 300 मल्टीप्लाई बाय 1.45 एंड दैट इज इक्वल्स टू $435। ये आपके पास पहले का आंसर। On the same day, the rate of exchange between South African rands and pounds was 10.44 rands equals to 1 pound.
कैलकुलेट द नंबर ऑफ फ्रेंड रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर $1। यहाँ पर दो कन्वर्जन है, क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है कि 1 पाउंड बराबर है $1.45 के, और एक हमारे पास है 1 पाउंड बराबर है 10.44 साउथ अफ्रीकन रैंड के। ऑलराइट, तो दोनों साइड पर हमारे पास 1 पाउंड है, इसका मतलब हम राइट साइड को इक्वेट कर लेंगे। तो अब हमारा कन्वर्जन फैक्टर जो नया बनेगा वो कुछ यूं होगा कि $1.45 इक्वल्स टू 10.44 रैंड। आपको क्या फाइंड करना है, आपको $1 का फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पर $1 होगा तो ये x है आपको फाइंड आउट करना है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल्स टू 7.2, ये आपका आंसर है। December 12th, paper 1-2, it says Matthew makes pieces of furniture and sends them to a shop where they are sold. When pieces sold, the shopkeeper receives 15% of the selling price and Matthew receives the rest. Alright, shopkeeper को 15% मिल रहा है और बाकी सब Matthew दे रहा है. Our table is sold for 200. Calculate the amount the shopkeeper receives. तो बड़ा ही सिंपल है, shopkeeper को मिल रहा है 15%, that is 15 upon 100 multiply with 200, so that will be equals to $30. इसका मतलब जब कोई चीज़ $200 की सेल होगी तो शॉपकीपर को मिलेगा उसका 15%. ऑलराइट, now in the next part, the cost of making this table was 131.80. Calculate the percentage profit that Matthew makes when this table is sold. सबसे पहला काम हम ये करते हैं, हम निकालते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट इज व्हाट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस आपको दी है, इट्स 200, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट विल बी योर प्रॉफिट एंड इट इज इक्वल्स टू 68.2. अब इसमें से मैथ्यू को कितना मिलेगा, तो उसको मिल रहा है 85%, दैट मीन्स 0.85 से आपने मल्टीप्लाई किया तो मैथ्यू को मिल जाएगा इट्स 57.97. तो मैथ्यू को मिल रहा है 57.97. ऑलराइट, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट. The working formula is what, profit divided by cost price multiply by 100. प्रॉफिट कितना हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 57.97 divided by cost price is what, 200 and multiply by 100, so that will be equals to 28.9%. जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 29% है. B. Matthew made a bookcase. The cost of making the bookcase was 647.50. After the bookcase is sold and the shopkeeper has received 15% of the selling price, Matthew makes a profit of $160. Calculate the selling price of the bookcase. सबसे पहला काम करेंगे, प्रॉफिट का लिखते हैं फार्मूला. प्रॉफिट क्या है, इट्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट किसका दिया हुआ है, उन्होंने मैथ्यू का दिया हुआ है, तो हम सेलिंग प्राइस भी मैथ्यू की लेकर आएंगे. अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 647.50. ऑलराइट, अब सेलिंग प्राइस का क्या हो रहा है कि उसको कितना मिल रहा है, 0.85, राइट. तो ये आएगा 0.85 ऑफ एक्स, जो कि मुझे नहीं पता. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 160 प्लस 647.50 इज इक्वल्स टू 0.85 एक्स. So that is equals to 807.5 equals to x. 0.85 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू $950. इसका मतलब कि उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी दैट शुड बी 950. It's November 2012, paper 2-2. The question says a shopkeeper sells cartons of milk and bottles of water. Each carton of milk costs 2.4 and each bottle of water costs 0.80. One day he sells X carton. On the same day he sells 20 more bottles of water than cartons. तो पहले हम ये देखते हैं उसने मिल्क के कार्टन कितने बेचे. तो मैं ये कहूँगा कि यार मिल्क के कार्टन उसने सेल किए X. जिस दिन उसने मिल्क के कार्टन X सेल किए उस दिन उसने 20 मोर बॉटल सेल किए वाटर की, ठीक है ना. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो बॉटल वाला आएगा, बॉटल्स कितनी हो जाएंगी मेरे पास, वाटर बॉटल्स आर X प्लस 20 ज़्यादा हुए. अब आपके पास मिल्क की प्राइस क्या है, इट्स 2.40. तो एक मिल्क की प्राइस है 2.40. अगर X बेचे होंगे तो ये आएगा 2.40x. इसी तरह एक बॉटल की जो कॉस्ट है वो है 0.80. तो अगर x प्लस 20 होगा तो ये आएगा 0.80 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 20. अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 0.80x प्लस 0.8 इंटू 20, इट विल बी 16. अब इसने आपसे कहा यू नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डॉलर्स, मतलब कॉस्ट निकालनी है आपको. तो आप सिंपल दोनों को ऐड कर दोगे, 2.40x प्लस 0.80x प्लस 16. So 2.4 plus 0.8, that will be 3.2x plus 16. ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया. Alright, for the next part.
The total amount he receives that day from the sale of these cartons and bottle is greater than 250. अब आपसे क्या कह रहा है, इनइक्वलिटी फाइंड करनी है, बहुत सिंपल है. टोटल कॉस्ट तो हम निकाल चुके थे पहले पार्ट में, 3.2x प्लस 16 इज ग्रेटर देन. ऑलराइट, आपको दिया हुआ है ग्रेटर देन किससे, 250 से. अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, तो 3.2x ग्रेटर देन 250, ये प्लस 16 वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस 16. सिंप्लीफाई करेंगे भाई इसको, 250 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 234. तो आप कहोगे 3.2x ग्रेटर देन 234, और अब 3.2 जाके डिवाइड हो जाएगा. सो x इज ग्रेटर देन 234 डिवाइडेड बाय 3.2. तो 234 divided by 3.2, its x should be greater than 73.125. ठीक है. अब अगर 73 से बड़ा है आपके पास x, तो x का पॉसिबल आंसर आपको क्या समझ में आएगा, अगर x 73 से बड़ा है दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 74. ये आपके पास आपका आंसर हो गया. नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, हैंस राइट डाउन द लीस्ट नंबर ऑफ कार्टन्स ऑफ मिल्क दैट ही सेल्स. अच्छा, ये तो x इक्वल टू 74 था, ये इसका आंसर है पार्ट 3 का. ठीक है, और इसका आंसर आपने ये तक छोड़ना है, यहाँ पे आपको खाली उसकी इनइक्वलिटी बना के देनी थी और सॉल्व कर लिया, तो आपके पास पार्ट 2 का आंसर यहाँ रुक जाएगा और पार्ट 3 का आपका आंसर हो जाएगा दैट x इज 74. उसी पार्ट से कनेक्ट हो रहा है ये. Number 13, paper 1-1, express the ratio 30 minutes to 2 whole 1 upon 4 hours in its lowest term. तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हम दोनों के यूनिट कन्वर्ट करेंगे. तो 30 मिनट्स तो अपनी जगह ऐसे ही आ गया. ठीक है. अच्छा, ये 2 whole 1 upon 4 मतलब क्या हो गया, 9 upon 4 आवर्स. अगर 9 upon 4 को मैंने कन्वर्ट करना है मिनट्स में, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 60. 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20. ऑल राइट, और यहाँ पर 30 अपनी जगह. So now it will be 30 ratio 15 into 9. अब यहाँ पर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं भी करना चाह रहे तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 3s are 9, 3 10s are 30. All right. After that 5 3s are 15, 5 2s are 10. बचा क्या, लेफ्ट में हमारे पास 2 बच गया और राइट में हमारे पास 3 3s are 9. ये इसका आंसर हो गया. पार्ट बी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 200 फॉर 4 years at 0.6% per year. So interest is what, P, that is 200 multiplied by rate, that is 0.6, time is 4 and divided by 100. Simplify किया आपने, so it will be 2 4s are 8, 8 into 0.6, that will be $4.8. ये आपका interest. It's December 13, paper 2-1. The question says the rate of exchange between dollars and pound is given. The rate of exchange between euros and pound is known. Emmy changed 300 pounds into dollars. Calculate how many dollars Emmy receives. All right. So you have a conversion from dollars to pounds. It says that 1 pound equals to $1.56. If she has 300 pounds, so what it will be? So you need to multiply 300 with 1.56, and that gives the value of 468. All right. So in the first part, the answer is $468. In the next part, Ben changes 770 euros into pounds. All right, now you have a conversion that 1 pound equals to 1.10 euros, and he has converted 770 euros into pounds. So that will be 770 divided by 1.10 equals to y, and y equals to 700. That is your second answer. And the third part, it says Chris changes $780 into euros. Now it from dollars to euros. We don't have any डायरेक्ट हमारे पास कोई वो नहीं है, फैक्टर नहीं है, बट हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? आपको जो चीज़ मालूम है वो क्या है कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.56, और हमें मालूम है 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.10 यूरोज. अगर फोकस करें तो दोनों साइड पर हमारे पास 1 पाउंड है, राइट. इसका मतलब हम दोनों फैक्टर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. दैट मीन्स $1.56 इक्वल्स टू 1.10 यूरोज. अब आपको फाइंड आउट कितने का करना है, $780. अगर $780 होंगे तो क्या यूरोज होगा, दैट इज ए. मैंने इसको अननोन कर दिया. नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 550. ऑलराइट, 550 यूरोज, ये इसका आंसर है. पार्ट बी,
Debbie changed some dollars into Japanese yen. The rate of exchange was $81 is to 1 yen. Alright, अगर आपके पास $81 हैं तो आपके पास 1 yen है. Emma changed the same number of dollars into yen. The rate of exchange was for Emma was $82 is to 1 yen. ये आ जाएगा $82 is to 1 yen. Emma received 3 fewer than Debbie. Emma को जो भी मिला होगा वो Debbie से 3 कम है. 3 fewer than Debbie. Given that the number of dollars change each time is x, find x. Alright. तो जो वो डॉलर्स हैं वो हमारे पास x हैं. अब यहाँ पर हमारे पास डॉलर जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू येन, क्योंकि एक येन में $81 आ रहे हैं. अगर मैं x को कन्वर्ट कराऊंगा तो मेरा एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी x डिवाइडेड बाय 81. ये उसको मिले होंगे डेबी को. इस तरह एम को कितने मिले होंगे, इट विल बी x डिवाइडेड बाय 82. इनको सब्सटीट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में. एमा को मिले x डिवाइडेड बाय 82 इक्वल्स टू डेबी को मिले x डिवाइडेड बाय 81 माइनस 3. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पहले इसको अरेंज कर लेंगे तो ये आएगा x डिवाइडेड बाय 81 माइनस x डिवाइडेड बाय 82 इक्वल्स टू 3. एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज 81 टाइम्स 82, तो ये आएगा हमारे पास 82x माइनस 81x इज इक्वल्स टू 3. 82 minus 81 that will be x. 81 times 82 and that is equals to 6642. तो 6642 यहाँ पर आके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 19926. सो x इज इक्वल्स टू $19926. ये आपका आंसर. December 13, paper 2. The cost price of a bicycle is $620. The shopkeeper sells it and make a profit of 45%. Calculate the selling price. All right. So the price is $620. It is original at 100%. Shopkeepers makes a profit of 45%. So that will be 45, and you need to find out the selling price. So X is $899. All right. In a sale, the price of bicycle B is reduced from 2400 to 1596. Calculate the percentage reduction. The working formula is very simple. That is the difference. That is 2400 minus 1596 divided by original price. That is 2400 and multiply by 100. So that is equals to 33.5%. All right. Next part. Tax on the original price of bicycle C is charged at 20% of the original price. After tax has been included, Matthew pays 1080 for this bicycle. Calculate the original price. तो जब प्राइस उसके पास 1080 है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड है, दैट मीन्स नाउ इट्स 120. जब 100% पर है तो क्या प्राइस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है. सो y इज इक्वल्स टू $900. दैट इज योर आंसर. ऑलराइट. नेक्स्ट पार्ट. Ada invests 600 in an account that earns simple interest. At the end of 3 years, the investment is worth $681. Calculate the rate of simple interest per year. Alright, the first thing is this one. ये आपके पास interest नहीं है, that is your amount. Alright. Now amount is what? Amount is principal plus interest. Amount आपको दिया हुआ है 681 is equals to principal is 600. मुझे अभी इंटरेस्ट नहीं पता तो मैं यहाँ से इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू $81. ऑलराइट. नाउ इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाय 100. इंटरेस्ट हमने निकाल लिया है, दैट इज 81. प्रिंसिपल इज 600. रेट इज अननोन. टाइम इज 3 years एंड डिवाइडेड बाय 100. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 81 डिवाइडेड बाय 18 एंड रेट इज इक्वल्स टू 4.5%. ये आप लोगों का आंसर है. June 13, paper 2. It says Munro changes 25,200 rupees into dollars. Calculate how many dollars he receives. आपके पास conversion rate मौजूद है इस वक्त. If it's 1 pounds, then it is equals to $2.06. All right. And if it's 1 pounds, then it's 72 rupees. अच्छा, अब मसला ये है कि आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ से डॉलर्स को. आपको डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप यहाँ दिया हुआ नहीं है, बट अगर आप फोकस करो तो यहाँ भी 1 पाउंड है और यहाँ भी 1 पाउंड है. ठीक है, तो दोनों तरफ 1 पाउंड ही है मेरे पास. इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि यार $2.06 इज बेसिकली इक्वल्स टू 72 रुपीज़. अब मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ कि अगर $2.06 में इतने रुपीज़ हैं तो 25,200 रुपीज़ में कितने डॉलर्स होंगे. सो x इज इक्वल्स टू $721. और ये आपका पहले का आंसर आ गया. पार्ट 2.
Mr. changes 380 euros into dollars. He receives $551. How many dollars does he receive for each euro? बेसिकली आपको यूरो और डॉलर से कन्वर्जन रेट फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। तो इसने ये कहा कि अगर उसके पास 380 यूरोज हैं तो उसको $551 मिल गया, ऑलराइट। अब मुझे ये फाइंड करना है हाउ मेनी डॉलर्स डज ही रिसीव। तो अगर 1 यूरो होगा तो कितने डॉलर्स होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ $1.45. Part B. On 31st March 2011, Lydia and Simon each had $8,000 in an account. Lydia's money is in a super saver account, Simon's money in a extra saver account. How much money did Lydia have in an account on 31st March 2012 after the interest had been added? Simply हम formula apply करेंगे interest का. Principal is what? Principal is 8,000. Rate is what? कहाँ उसने रखा अपना account? Super saver. So it's 3.4. Time is 1 year and divided by 100, so that is equals to 272. अब उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट इज व्हाट? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 272, सो दैट इज इक्वल्स टू 8272। ये आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। पार्ट 2, ऑन 31st March 2012, Lydia transferred this money to an extra saver account. How much money did she have in this account on 31st March 2013 after the interest had been added? अब जो रेट होगा वो 3.5% का होगा। दोबारा फॉर्मूला अप्लाई किया इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल जो होगा वो होगा 8272 मल्टीप्लाई बाय रेट इज 3.5 मल्टीप्लाई बाय टाइम इज 1 ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100। सो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 289.52। अब आपने निकालना है अमाउंट। अमाउंट इज व्हाट? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 8272 प्लस 289.52। ऐड करते हैं दोनों को, प्लस 8272 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8561.52, that is the total amount. Part 3. Simon kept her money for the 2 years in the extra saver account, which earned simple interest of 3.5% per year. After all interest had been added, who had more money in their account on 31st March 2013 and by how much? तो पहले हम निकालते हैं कि साइमन का अमाउंट कितना है। सो इट विल बी, पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इज व्हाट? इट्स 8000. Rate for extra saver is 3.5 and time is 2 hours, all right? So time is 2 hours divided by 100. Simplify करते हैं इसको. So 8000 into 3.5 into 2 and divided by 100, so that is $560. So that is the interest for 2 years, all right? Now the amount for Simon, it will be 8000 plus 560 and that is 8560. टोटल अमाउंट जो साइमन को मिल रहा है वो 8560 है। टोटल अमाउंट जो लाइडिया को मिल रहा है वो 8561 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइडिया को ज़्यादा मिल रहा है, हु हैड मोर। सो लाइडिया को ज़्यादा मिल रहा है एंड बाय हाउ मच? इट्स $1.52 मोर। The table shows some of the nutritional information for a 300-gram tin of soup: carbohydrate, fat, fiber and sodium. What percentage of the 300-gram tin of soup is carbohydrate? तो कार्बोहाइड्रेट आपके पास कितना है? 18 ग्राम है। टोटल कितना है आपके पास? 300 ग्राम्स है और मल्टीप्लाई बाय 100 सिंप्लीफाई किया आपने, सो दैट विल बी 6%। ये पहले का आंसर। पार्ट 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द 300-ग्राम टिन ऑफ सूप इज फाइबर? तो फाइबर कितना है, लेकिन ये आपको आंसर बताना है फ्रैक्शन में। तो फाइबर कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाय 300। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 3000 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 500। तो यही छोड़ देंगे क्योंकि आपको फ्रैक्शन का बोला है, डेसिमल में आंसर मत दीजिएगा। ऑफ द कार्बोहाइड्रेट 15% आर शुगर्स, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ शुगर्स आर देयर इन 1 टिन ऑफ सूप? तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके पास हैं कितने? 18 ग्राम है। उस 18 ग्राम में आपका 15% जो है वो आपके शुगर्स हैं। तो 18 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 2.7, दैट इज योर आंसर। पार्ट बी, I need 2500 gram of soup. How many 300 gram tins of soup do I need to buy? अगर मुझे 2500 ग्राम चाहिए तो मुझे कितने सूप के टिन्स चाहिए होंगे? सो इट विल बी 2500 डिवाइडेड बाय 300, ऑलराइट। सिंप्लीफाई किया आपने, सो दैट इज इक्वल्स टू 8.33। अब बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 8 लिखते हैं, दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आप 8, लेट सपोज कि आपने 8 ले लिए, तो 8 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू
2400, क्या मेरा टारगेट पूरा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मुझे चाहिए 2500, तो मुझे 8 नहीं चाहिए, आई नीड 9 कैन्स ऑफ सूप, क्योंकि जब 9 होंगे तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज 9. Part C. During March, there is a special promotion and the soup is on sale in tins containing 20% extra. These tins of soup each contains 4.2 gram of protein. How much protein was contained in each original 300 grams tin of soup? Alright. तो नई जो ऑफर आई है उसमें क्या हुआ, उसमें आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, सो दैट विल बी 120, और 20% एक्स्ट्रा के बाद अब जो प्रोटीन है वो 4.2 है. तो जब एक्स्ट्रा नहीं था तो क्या प्रोटीन का उसमें क्वांटिटी थी, ये आपको फाइंड करना है. 4.2 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 120, सो दैट इज इक्वल्स टू 3.5, मतलब इनिशियल उसमें 3.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन था. तो ये आपका आंसर है. नेक्स्ट पार्ट. The special promotion tin cost 0.80. The soup can also be bought in larger tin containing 500 gram for 1.12. Is it better value to buy the 500 gram tin or the special promotion tin? Show your working. तो पहले मैं बात करता हूँ स्पेशल प्रमोशन वाले की, ठीक है. नहीं, स्पेशल प्रमोशन वाला जो था वो था 300 ग्राम्स, लेकिन उसमें 20% एक्स्ट्रा है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.20 से, ठीक है. तो 300 मल्टीप्लाई बाय 1.2, सो दैट इज इक्वल्स टू 360 ग्राम, मतलब उसमें अब 360 ग्राम्स आ रहा है. प्राइस देखो उसकी, इसकी जो प्राइस है वो है $0.80 में मेरे पास आ रहा है 360 ग्राम्स. तो अगर $0.80 में इतना है तो मुझे ये निकालना है कि यार $1 में कितना आएगा. So that will be equals to 360 divided by 0.8 and that is equals to 450. इसका मतलब ये हुआ कि $1 में ये अमाउंट होगा. ऑलराइट, तो ये $1 की प्राइस है. अब आते हैं इस वाले पर. यहाँ पर कह रहा है कि 500 ग्राम्स ये आ रहा है हमारे पास $1.12 में. यहाँ भी मैं प्राइस निकालूंगा कि $1 में कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1.12 and that is equals to 446.4 grams equals to $1. अब हमें कंपेयर करना है कि हमारे पास ये वाला बेहतर है या हमारे पास $1 इज इक्वल्स टू 450 ये वाला बेहतर है. तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर $1 में ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, तो हम ये रिकमेंड करेंगे कि स्पेशल प्रमोशन वाला ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि उसमें $1 में 450 ग्राम आ रहा है, जो कि ज़्यादा है. It's December 14, paper 2-1. Henry travels by plane from London to Bangkok. When it is 4 in London, it is 10 in Bangkok. Alright, इसका मतलब ये हुआ कि बैंकॉक जो है वो लंदन से 6 घंटे आगे है, ठीक है. The flight takes 11 hours 15 minutes. If he leaves London at 21:50 local time, what is the local time in Bangkok when he arrives? तो पहला काम हम ये करते हैं कि अगर लंदन में 21:50 होगा तो उस वक्त बैंकॉक में क्या टाइम होगा. अब हमने डिसाइड कर लिया है कि बैंकॉक जो है वो लंदन से 6 घंटे आगे है. तो अगर 21:50 होगा तो 6 घंटे अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये. सो इट इज़ इक्वल्स टू 3:50, मतलब सुबह के 3:50 हो रहे होंगे, ठीक है. अच्छा जी, फ्लाइट ने लिए कितने, 11 घंटे और 15 मिनट. तो अगर मैं इसमें 11 घंटे 15 मिनट ऐड कर लूँ तो क्या आंसर आएगा, अब ये देखते हैं. 50 + 15 दैट विल बी 65 और 11 + 3 दैट इज़ 14, राइट. तो हमें मालूम है कि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, सो दैट विल बी 15:05, दैट इज़ योर आंसर. In part B, it says that on his return journey, Hendrik leaves Bangkok at 7:45 local time and arrives in London on the same day at 13:40. How long was his return flight? All right. तो अगर 7:45 बैंकॉक का टाइम हो रहा है तो पहले हम ये देखते हैं कि लंदन का टाइम क्या है. तो लंदन में उस वक्त हो रहा होगा 1:45, क्योंकि बैंकॉक हमारे पास 6 घंटे ज़्यादा है. तो ये हमारे पास आ गया लंदन का टाइम, राइट. अब हो क्या रहा है, जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो टाइम हो रहा है 1:45, ये रात का टाइम है, ठीक है. और फ्लाइट पहुंची कब है, 13:40, मतलब दोपहर के 1:40 पे पहुंची है और रात के 1:45 पर उड़ी थी, ठीक है. तो फ्लाइट का टाइम कितना है, बहुत सिंपल है हमारे पास भाई. अगर 1:45 पर टेक ऑफ कर रही है, ठीक है, और मान लें कि दोपहर के 1:40 PM पर फ्लाइट लैंड कर रही है, तो टाइम ड्यूरेशन कितना है. अगर ये 1:40 ना होता, सपोज करें 1:40 ना होता और ये 1:45 होता, अच्छा इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, 1:45 रात के और 1:45 दिन के, तो ये हमारे पास टोटल 12 आवर्स का टाइम होता है, ठीक है ना. लेकिन यहाँ पे अब 1:45 नहीं है हमारे पास, जो क्वेश्चन है वहाँ पर ये 1:40 है.
तो अगर मैं इसको 140 कर दूं तो अब मुझे बताएं कि 5 मिनट कम हो गए, मतलब अब जो है टाइम वो 12 आवर्स नहीं है, अब जो टाइम है वो आएगा 11 आवर्स एंड 55 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट कम है. In part C, it says that the graph opposite shows the exchange rate between British pound and Thai baht on the day Hendrik arrives in Bangkok. Use the graph to estimate the cost in British pound of an item costing 13,000 THB. तो अगर 13,000 भात हैं तो 13,000 है का हमारे पास 11, 12 और 13. तो ये जो लाइन मैंने प्लॉट की है ये रिप्रेजेंट कर रही है 13,000 बात को, ठीक है ना. तो 13,000 बात का मतलब क्या है ग्राफ पर आपको ये देखना पड़ेगा. तो हमने इसकी वैल्यू निकाली तो आपके पास ये कितना आ रहा है, इट्स 200, 300, तो ये तकरीबन मेरे पास आ रहा है 290. ऑलराइट, सो द फर्स्ट वन इज 290 और 290 300 के बीच में, सो आई थिंक इट्स 290, 295, कुछ भी आप लिख लो, 290 या फिर 295. पार्ट 2, द एक्सचेंज रेट कैन बी रिटन एज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू के भात. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. इसके लिए मैं ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट निकालूंगा जहां पर मुझे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट पता हो, ठीक है, या बहुत ही मुझे क्लियर पता हो, जैसे कि ये पॉइंट है. अब इस पर मुझे नज़र आया कि अगर मेरे पास 1000 ब्रिटिश पाउंड्स हैं, ठीक है, 1000 मेरे पास अगर ब्रिटिश पाउंड्स हैं तो वो बराबर किसके हैं, दे आर इक्वल्स टू 45,000 THB. ऑलराइट, तो आप कोई भी एक पॉइंट लो, लेकिन वो पॉइंट ऐसा हो कि उस पर आपके पास इंटीजर वैल्यूज हो, डेसिमल्स में ना हो. तो ये आ गया 1000 पाउंड इक्वल्स टू 45,000 THB. आपको ये फाइंड करना है कि एक पाउंड में कितना THB होगा. ऑलराइट, तो सिंपली बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 45,000 डिवाइडेड बाय 1000, 45,000 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू 45. तो ये आपके पास इसका आंसर है. पार्ट डी, it says the cost of flights from London to Bangkok is shown in the table below. For this cost, passengers are allowed to take luggage up to the weight shown. Passengers taking more than this weight of luggage, you pay an excess charge at the rate shown, business class and economic class. Calculate the total cost of Hendrik flying economy class from London to Bangkok with luggage weighing 29 kg. तो वो ट्रैवल कर रहा है इकोनॉमी क्लास से, मतलब ये वाला हमारा टेबल एक्टिव हो जाएगा. उसका वेट कितना है, 29 kg. ऑलराइट, यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि 23 kg तक का तो उन्होंने एकोमोडेट किया हुआ है, उसके बाद जो होगा उसके लिए 24 पाउंड्स पर केजी देना पड़ेगा. तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, उसकी टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास पार्ट डी की 683. तो वो पे करेगा ही करेगा, प्लस 23 kg तक का तो है उसको अलाउ है, उसके पास 29 kg मतलब 6 kg का वो एक्स्ट्रा पे करेगा. तो ये आएगा 6 × 24, so that will be equals to 827. ये इसका आंसर है. December 14, paper 22. In 2013, Mary worked for a company. Her salary for the year was $18,750. $5,625 of her salary was not taxed. What percentage of her salary was not taxed? तो 5,625 टैक्स नहीं लगा इस पर, डिवाइडेड बाय 18,750 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 5,625 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 18,750. सो दैट इज इक्वल्स टू 30%, मतलब 30% उसका टैक्स नहीं लगा. ठीक है. द रिमेनिंग 13,125 ऑफ मैरी सैलरी वॉज टैक्स्ड. 22% of this amount was deducted for tax. Mary's take-home pay was the amount remaining from 18,750 after tax had been deducted. She received this in 52 equal amounts as a weekly wage. Calculate Mary's weekly wage. तो पहला काम ये करते हैं कि 13,125 पर जो टैक्स है वो निकालते हैं. ठीक है ना. तो इसका हमने निकाला 22%. So 13,125 multiplied by 22 and divided by 100. So that is equals to 2887.5. ये तो उसका वो अमाउंट है जो टैक्स कट रहा है. याद रखिएगा कि टोटल अमाउंट ये थी, लेकिन इस अमाउंट में इस पर टैक्स नहीं लग रहा था. ठीक है. तो जो अमाउंट बची है उस पर टैक्स हमने निकाला, तो वो टैक्स हमारा ये आ गया. अब क्या कह रहा है, मैरी टेक होम पे वॉज द अमाउंट रिमेनिंग फ्रॉम 18,750. जो उसकी अमाउंट थी 18,750, उसमें से टैक्स रिमूव कर दें 2887.5. तो अब क्या बचा, अब उसके बाद बचा 18,750 माइनस आंसर 15,862.5. ये उसका वो अमाउंट बच गया. और ये जो अमाउंट उसको मिल रहा है ये 52 वीक्स में मिल रहा है, तो उसको हमने डिवाइड किया 52 से एंड दैट इज इक्वल्स टू $305. तो उसकी जो वीकली वेज है दैट इज $305. नेक्स्ट पार्ट,
In 2012, Mary had worked for company B. When she moved from company B to company A, her salary increased by 25% to 18750. Calculate her salary when she worked for company B. तो आपको उसको वो वाली इनकम फाइंड करनी है जो इंक्रीमेंट से पहले थी. तो जब इंक्रीज हुआ 25% का तो सैलरी कितनी थी 18750. जब इंक्रीमेंट नहीं था तो सैलरी क्या थी ये आपको फाइंड आउट करना है. सो 18750 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, सो दैट इज इक्वल्स टू 15,000. तो जब इंक्रीमेंट नहीं था तब जो उसकी पे थी दैट वाज $15,000 और ये इसका आंसर. It's June 14, paper 1-2. Question says the cost of a mirror is proportional to the square of its width. A mirror of width 40 cm costs $24. Work out the cost of a mirror of width 60 cm. पहली चीज आपको दिया हुआ रिलेशन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ अ मिरर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स विड्थ. ऑलराइट, ये हो जाएगा आपके पास C इक्वल्स टू K W स्क्वायर. W निकालने के लिए K निकालने के लिए आपको C और W दिया हुआ है. जब कॉस्ट 24 है तो जो विड्थ है आपके पास इट्स 40 स्क्वायर. ऑलराइट, तो यहाँ से मुझे K की वैल्यू मिल गई K इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर. उसके बाद आपको क्या कहा, वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ अ मिरर ऑफ विड्थ 60 सेंटीमीटर. रिलेशन आपके पास आ चुका है C इज इक्वल्स टू K W स्क्वायर. K की वैल्यू आपके पास आ चुकी है इट्स 24 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर. W आपको दिया हुआ है 60 स्क्वायर. अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 24 इंटू 60 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 40 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 40 मल्टीप्लाई बाय 40. सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जीरोस को सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल. अब आते हैं नंबर्स पर. 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 4 1s आर 4, 4 6 आर 24, 2 1s आर 2, 2 3s आर 6, 6 3s आर 18, 18 3s आर 54. ये आपका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dwayne buys a camera for $90. He sells the camera for $126. Calculate his percentage profit. परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ऑलराइट, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 126 माइनस 90 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 90 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100. सिंप्लीफाई किया आपने इसको, आंसर इज 40%. नेक्स्ट पार्ट द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर वाज 375. In the sale the price was reduced by 15%. तो ये बहुत सिंपल है, आपके पास 375 की प्राइस थी, इसका हमने फाइंड करना है 15% कितना हो जाएगा. सो दैट विल बी 56.25. ये इसका आंसर. June 14 paper 2-2. Mariam works in a shop. She earns $5.20 per hour. She also earns a bonus of 15% of the value of the item she sells in a week. In 1 week, she works for 32 hours and she sells item with a value of 2450 pounds. Calculate Mariam total earning for the week. Alright. तो पहली बात ये है कि वो काम कर रही है कितना 5.20 पर आवर और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से क्योंकि वो वीक में 32 आवर्स काम कर रही है. ऑलराइट, तो आपने मल्टीप्लाई किया 5.20 मल्टीप्लाई बाय 32 एंड दैट इज इक्वल्स टू 166.4. ठीक है जी, ये तो उसके आवरली पेमेंट आ गई है. उसके अलावा क्या करें, शी ऑल्सो अर्न्स अ बोनस ऑफ 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द आइटम शी सेल्स इन अ वीक. तो एक वीक में वो कितना सेल कर रही है, इट विल बी 15% ऑफ 2450. तो एक जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 15 मल्टीप्लाई बाय 245 एंड डिवाइडेड बाय 10. सो दैट इज इक्वल्स टू 367.5. तो आपको फाइंड करना है टोटल अर्निंग. अब आप इसमें ऐड करोगे 166.4, सो दैट इज इक्वल्स टू 533.9. दैट इज योर आंसर. In part 2 it says in another week Mariam worked for 28 hours and earned a total of 409. तो पहले हम ये देखते हैं कि मरियम की जो टोटल अर्निंग है वो कैसे आती है. वो आती है कि उसने जितने भी आवर्स काम किया 28 है उसको मल्टीप्लाई किया हमने पर आवर से, ठीक है, और उसमें हम ऐड करते हैं 15% का वो वैल्यू जो वो सेल करती है. और इस दफ़ा जो टोटल उसकी है वो है 409.60. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे. तो पहली चीज़ 5.20 multiply by 28 and that is equals to 145.6 plus 15 divided by 100, it's 0.15x
is equals to 409.60. So 409.60 minus 145.6 and divided by 0.15. तो इस दफ़ा उसकी जो प्राइस है, जो उसकी वैल्यूज थी वो थी 1760 एंड दैट इज़ योर आंसर. Jack opens a bank account paying simple interest. He pays in $800 and leaves it in the account for 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives 920. तो ये 920 क्या है? ये उसके पास अमाउंट है, ठीक है ना. प्रिंसिपल 800 है. कैलकुलेट द परसेंटेज रेट, आपको यहाँ पर आर फाइंड करना है. सो अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है. अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज 920, प्रिंसिपल इज 800. इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू रेट इंटू टाइम इज 4 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100. तो ये 2 जीरो और 2 जीरो सिंप्लीफाई हो गए. सो 920 माइनस 800, सो दैट इज इक्वल्स टू 120. ऑलराइट, सो 120 इज इक्वल्स टू 8 4s are 32 times R. So 120 divided by 32, and that is equals to 3.75. That was the rate applied on interest. Part. Jack uses some of the $920 to pay for a holiday and a computer. He saves the remainder. The money is divided between the holiday, computer and saving in the ratio of 4, 5 and 7. Calculate the amount he saves. तो सेविंग्स का जो रेशियो है वो है आपके पास 7. ऑलराइट, तो आपको ये फाइंड करना है कि कितना अमाउंट उसने सेव कर लिया. तो इसको करेंगे कैसे? हम लोग करेंगे 7 जो कि सेविंग्स का रेशियो है डिवाइडेड बाय तीनों का मिला के रेशियो कितना है? 7 + 5 12, 12 + 4 16 और जो टोटल प्राइस थी इट्स 920. सो 7 डिवाइडेड बाय 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 920, सो दैट इज इक्वल्स टू 402.5. उसने इतना अमाउंट सेव कर लिया एंड दैट इज योर आंसर. It's June 14 paper 2-2. The pie chart summarizes the result of a local election. Candidate B received 1600 votes. Work out the total number of people who voted in the election. तो अगर मैं कैंडिडेट बी को देखूं तो ये आ रहा है 60 डिग्री आपकी डायग्राम में और यहाँ पर आ रहे हैं 1600 वोट्स. टोटल एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्री का. टोटल वोट्स हमारे पास क्या होंगे? सो दैट विल बी एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट एक्स इक्वल्स टू 9600. तो टोटल आपके पास 9600 वोटर्स हैं या वोट्स हैं. पार्ट 2. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वोट डिड कैंडिडेट डी रिसीव? अगर मैं डी की बात करूं तो पहले मुझे डी का एंगल निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे? 90 + 60, 90 + 60 + 144 और इन सबको हम माइनस करेंगे 360 में से. सो दैट विल इक्वल्स टू 66 डिग्री. ठीक है जी, ये तो डी का एंगल आ गया. मुझे फ्रैक्शन फाइंड करना है. फ्रैक्शन मैं एंगल से फाइंड कर लूंगा कि 66 डिवाइडेड बाय 360 and that is equals to 6 11s are and 6 60s are. So that is your answer. Part 3. How many more votes than candidate A did candidate C receive? तो आपके पास कैंडिडेट सी का जो एंगल है दैट इज 144, कैंडिडेट ए का जो एंगल है दैट इज 90. तो हम निकालेंगे इनका डिफरेंस. सो दैट इज इक्वल्स टू 144 माइनस 90 इज 54. अब 54 डिग्री पर मुझे निकालने इनके वोट्स. कैसे निकालूंगा मैं? अगर आपके पास बी को देखते हैं, अगर 60 डिग्री था तो वोट्स हमारे पास है 1600, राइट. तो अगर 54 डिग्री होगा तो वोट्स हमारे पास क्या होंगे? सो दैट इज इक्वल्स टू 54 इंटू 1600 एंड डिवाइडेड बाय 60. सो y इज इक्वल्स टू 1440. दैट इज योर आंसर.